Class 11 will focus on the coordinate bond, and I have written, you know, that's a special type of covalent bond in which both the electrons of the shared pair of electrons come from one atom to the other combining atom. So I have made it over here two different atoms, and these atoms you have to focus on it that one of the atom acts as a donor atom and other acts as a acceptor atom, right? So the donor or atom has the qualities that this particular donor atom will have, it will basically, it will donate a pair of electrons first thing to the acceptor atom, and they contains extra electrons in them. Extra electrons in them matlab they will contains lone pair of electrons, or you can say that octet is already completed beforehand. Octet is completed in these atoms, okay? But in case of acceptors, they don't have the lone pair electron, they will have less electron in them, and a coordinate bond is always represented by an arrow sign. So I'm writing here over here by an arrow sign. It's an arrow sign, you know. So it is represented in this atom, and this particular arrow indicates from which atom, from an acceptor atom to a, sorry, from a donor atom to a acceptor atom. So what happened that this particular have, it's already, its octet is completed, and it has you know that it has extra electron in it. So but if you see the B case, B has 6 electrons, so it needs 2 more electrons in its valence shell. So 2 of the electrons from A will be finally when this particular B will accept it. So it is being transferred from this side to this side. So it will behave in this manner. This A, so A, the electrons are transferred from to B. So this is the case. So how this particular you know, this coordinate bond is formed, in this manner you have to focus on it. So this thing they will also try to complete it octet. It's already, its octet was completed, then only is giving 2 electrons. In class 10 standard you have discussed these two molecules. We are not discussing the same here. We will focus on the points which are there, which are new to us. This is new, this is not new to you, you know it how to make it. Now we'll make different ones. So let's come with the ozone one. I have already discussed, but still I am telling you, you have 3 atoms of oxygen, and you know how many electrons are there in this particular case of it. You know 6 electrons in its valence shell, है ना, you know ना, 2,6 होता है, तो 6 you are writing. So if you just focus on this particular this thing, they go for sharing, है ना, ये sharing पे जाते हैं, this portion दे गो फॉर शेयरिंग. तो ये तो अपना ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, बट दिस दे नीड, अगर ये शेयरिंग पे जाएगा तो दिस पर्टिकुलर आइटम विल नाउ होल्ड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऑलरेडी इट इज़ हैविंग 8, क्योंकि देखो 4 ये है 5. सो इफ़ इट इज़ गो फॉर शेयरिंग देन इट विल शोज 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8. और अगर शेयरिंग पे जाता दो इसके आ जाते 10, बट इट विल नॉट गो शेयरिंग. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस एटम टू दिस एटम. सो इट इज़ बीन रिप्रेजेंट इन दिस मैनर. ये तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है. नाउ विल फोकस ऑन द अदर पार्ट ऑफ इट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. सो देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल. लेट फोकस ऑन द फर्स्ट वन. हाइपोक्लोरस एसिड है ये, HClO. Let's focus on it. So let's see how we can make it. Now if you see this thing, H it needs 1 electron, this need 1 electron. ये तो बेसिक नॉलेज है. इसको 1, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन. तो लेट्स सी वेयर वी कैन प्लेस विच एटम. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस है, सेंट्रली प्लेस रखो. Cl को 1 चाहिए, H को 1 चाहिए, तो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है. यू मेक द इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. ऐसे बना लो ये दो. सो दिस इज़ द केस ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड. इसकी हम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड भी और भी चीज़ें हैं. अब तुम हाइपोक्लोरस एसिड का भी कंडीशन देखोगे, जो तुम्हारा निकल के आएगा, इट विल नॉट शो यू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. लेकिन ये फर्स्ट मेंबर है, इसी से ही आगे बढ़ते हैं, इसीलिए आई टुक हाइपोक्लोरस एसिड. तो बेसिकली दिस गो फॉर शेयरिंग, दिस गो फॉर शेयरिंग, है ना. तो ये बेसिकली आपका इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन दे देगा, है ना. नाउ अब यू कम टू क्लोरस एसिड. क्लोरस एसिड इज़ व्हाट, HClO2. अब देखो यहाँ पे जो Cl है, अब यहाँ कंडीशन फ़र्क है. ये जो इतना पोर्शन सिंगल जो H है, HOCl, ये तो आपका जो ये पोर्शन है वही बनेगी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपकी फ़र्क बनेगी. अब उसको देखते हैं कैसे, ठीक है. हम इसको दोबारा से बनाएंगे. वी मेक इट H ओवर हियर,
O को एक जगह सेंट्रली प्लेस देखो, Cl को यहाँ रखो। देखते हैं दूसरा ऑक्सीजन का है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखो, ये तो अपना वही कर लेंगे, शेयरिंग पे जा रहे हैं ना, तो ये आपका ऐसे आया। ये देखो, ये वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ये Cl के आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 यहाँ है। अब ये इसके पास एक ऑक्सीजन आइटम और है। ये ऑक्सीजन आइटम कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया? 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके आया। तो 2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो आपका बेसिकली क्या बना? HOCl यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र गया है, तो ये ऑक्सीजन आइटम। दिस इज़ योर क्लोरस एसिड। Now next is chloric acid. Now they will give you this name, they will not give you this formula. So make sure of it. तो आपने वो भी हाइपोक्लोरस एसिड बनाया ही है, क्लोरस एसिड भी बनाया, तो हाँ चलो हाइपोक्लोरस को ही रखो, वही कंडीशन बनाओ। HO को बनाओ, फिर Cl बनाओ। एक आपने यहाँ Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ही था अभी पीछे, है ना। अभी यहाँ पर भी कुछ बनेगा, अब देखते हैं इधर क्या बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट ही बनेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसे आएगा, लेट्स फोकस ऑन इट। H लिखा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स Cl, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, यू वर 2 इलेक्ट्रॉन्स यू वर पासिंग इट टू दिस पर्टिकुलर आइटम। अब एक नीचे भी लगा दो, क्योंकि यही एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है, इसको दे देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक्स्ट्रा थे यहाँ ट्रांसफ़र हुए, है ना। तब आपका स्ट्रक्चर कैसे बन के आया? HCl, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यू कैन सी इट। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो पर क्लोरिक एसिड। मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ, यू मेक इट बाय योर ओन। HClO4, अब देखो HClO3 आप बना के आए हुए हो, है ना, ये आपने कंडीशन बनाई रखी है। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर यू ऑल। आपने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया रखा है, यहाँ आपने कोऑर्डिनेट, अभी भी आपके पास इस कंडीशन देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ Cl ऊपर लग जाएगा, उसे ट्रांसफ़र कर दोगे, तो यहाँ पे भी आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो मेक इट ट्राई टू मेक इट बाय योर ओन, और रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आर नॉट देयर इन योर कोर्स, तो नो नीड टू लर्न देम। Now next condition about the hydrogen bond, that is also known as hydrogen bonding. ठीक है, now let's focus on it. In this you have to keep it in mind, whatever the example you will take this condition should be there, means one hydrogen atom will be there, a bond that will be formed between the hydrogen atom, and other should be this will be highly electronegative atom you have to take. So highly electronegative atom में conditions आपकी बहुत से हैं, you can take S, you can take any halogens, ठीक है, यू कैन टेक ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली क्या है, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिकली एटम्स होते हैं, दिस थिंग यू कैन फोकस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ दिस थिंग point. Now the point is that one of the atom is highly electronegative atom in it. So this particular, you know that these are again in the previous case you have seen about the covalent bonds, that one was highly electronegative atom and they were attracting the electrons towards itself. So the shared pair of electrons was being attracted by this particular atom, and it was shifted towards this side. But in hydrogen bondings you have to focus other things also, that over here it's must a hydrogen atom. Now in this hydrogen bonding, you know this hydrogen atom is there, this is a highly electronegative atom, which you know that they leads to form the ions. This hydrogen atom which is having the positive charge and this is having a negative charge, so it will attract the electrons of this negatively charged atom toward itself. So and these two molecules are basically, and some other molecules are there, तो basically they are these two molecules of this thing, जैसे HA एक molecule है, दूसरा HA एक molecule है ना, these two molecules are held together by a weak force, ठीक है, weak force of attraction is been there, and that is this is just a hydrogen bonding. अब बेसिकली क्या है, हम आपको एक अच्छा एग्जांपल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, यू सॉ दैट इन वाटर इट वाज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, नो डाउट्स. बट इफ़ यू टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, अब ये दो मॉलिक्यूल्स अगर अटैच्ड होंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से तो अटैच थोड़ी होंगे, ये दे विल बी अटैच्ड बाय द वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज वाज हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
Now this particular hydrogen bonding is being represented by the dotted lines. That is very important. अब जैसे आप for example आपने HF लिया, ठीक है, इट इज़ हैविंग अ भाई कोवेलेंट है तो पार्शियल पॉजिटिव और पोलर कोवेलेंट, ये जो कंडीशन है दैट इज़ द केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. So it is partial positive, it is partial negative, the case has been there. तो partial negative, अब this is the single molecule, but if this particular these two molecules are attached together, then how they will attach, that is a big scenario. So you have seen dotted lines, H is been there, इनके बीच में तो covalent bond है, partial positive is there, partial negative is there. Now this will again attach with the, sorry, you make it the dotted lines over here, attach with the hydrogen bond. So डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है. अगर डॉटेड लाइन है तो ये एच है, पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल नेगेटिव है. तो दिस वे यू कैन हैव अ पॉइंट कि ये स्ट्रक्चर चलता जाता है आपका. ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केसेस. तो अगर जनरली हम देखा जाए तो क्लस्टर्स ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स एच एफ इज देयर, तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आई एम जस्ट टेलिंग यू द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक, यू सी एंड लर्न इट. This is the case definition. You learn the hydrogen bond or hydrogen bonding's definition. Now let's focus on it. Condition of hydrogen bonding. So there are two conditions you have to make it point, that highly electronegative of the atom bonded to hydrogen. ये तो हमें पता है, हाइड्रोजन हमें चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एटम, जैसे अगर आपको हमने दिया ऑक्सीजन, एफ है आपको दिया, नाइट्रोजन दिया, यू नो दैट विच इज़ व्हाट. अब हमने उल्टा पुल्टा आपको दिया, बट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन इज देयर देन नाइट्रोजन इज देयर. तो दिस यू शुड नो. तो अब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बनाएंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी कंपेरिजन टू दिस थिंग, ठीक है, कंपैरिजन टू. इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर लो, फिर आप कहोगे कोऑर्डिनेट मैम ने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है. सो दिस वे. नाउ स्मॉल साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द केस. जैसे अगर आप कोई भी देखें, जैसे ये है HCl है और HF है, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं देन HCl विल नॉट शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना. बिकॉज देखो दोनों के पास ये कंडीशन है, पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दोनों के पास है, हाइड्रोजन एटम दोनों के पास है, लेकिन ये नहीं शो करेगी, ये शो करेगी. क्यों? द पॉइंट इज़ दैट द एटम विच यू आर, हाइड्रोजन तो फिक्स है, लेकिन जो आप एटम यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसका एटॉमिक साइज़ छोटा होना, और हमें मालूम है फ्लोरीन का एक्सेप्शनल केस होता है, इसका एटॉमिक साइज़ छोटा होता है. आई हैव डिस्कस विथ यू इन डिफरेंट चैप्टर्स. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटॉमिक साइज शुड बी लेस, है ना. अब ऑक्सीजन देखो, उसका भी एटॉमिक साइज़ कम होता है कंपेरिजन टू Cl. So these are their cases. Now we have different types of hydrogen bondings. We have two types. The first is intermolecular hydrogen bonding, and other is your intramolecular hydrogen bonding. These are the types of hydrogen bondings. So let's come across with the inter means within the this thing, एक कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपको दिए रखे, उसके काफ़ी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो जाएंगे. जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही थी, जो हमने अभी देखा था, HF का एक मॉलिक्यूल, फिर HF का दूसरा मॉलिक्यूल, फिर इनकी आप कनेक्टिविटी बना रहे थे ना. तो इनमें मतलब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, दैट इज़ योर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे अभी हमने HF की बताई आपको, है ना. तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो, आपने ऐसे करके बना दिया, सॉरी ये बनाया है डॉटेड लाइन से कनेक्टिविटी, और इसको ऐसे भी बनाते हैं, HF है. अब ये डॉटेड लाइन से आपने रिलेटिव कर दिया, ये आपकी चॉइस है आप क्या कर रहे हैं. है ना, मैंने शॉर्ट में बनाया रखा है, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन व्हाट चेन दे आर यूजिंग. तो दिस इज़ द केस ऑफ योर, दे आर ऑलरेडी कोशिश करना कि अरेंज इट इन अ zigzag मैनर दैट इज़ बीन शोन टू यू. सो दिस शोज़. अब नाउ एक केस है वाटर की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो वाटर भी आपको मालूम है कि दे फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ice is also having the hydrogen bonding. So we have other examples also. Water is there, ice is there. This thing I am showing you from a book.
Now this is the case of water molecule, and you know this is the way how they've been attached, and hydrogen bonding has been there in the molecules of the water. Now this is also an example for the ice. Ice is very important part. They also shows the hydrogen bondings, and you know the water has this ice have the tendency of the density of ice is less and they floats over water. What is the case? Why the ice floats? आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में आइस डाला है, ऊपर फ्लोट करती रहती है, या वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है 4 होती है, उसके बाद वो उस पर फ्रीज हो, मतलब ना वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री एंड नॉट एट 0 डिग्री, है ना. सो वाई दिस इज़ बीन देयर, दीज क्वेश्चंस कम अराइजेस. तो यहाँ पे जो वाटर होता है वो जो स्ट्रक्चर आई एम शोइंग यू, this is the structure of lattice, crystal lattice of the ice. You see bigger molecules of oxygen atom, hydrogen atom, how they have been connected. So basically जो ice का जो study करा गया था एक्सरे में, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ थी आइस की, जो हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेट्राहीड्रली अरेंज्ड होते हैं आइस के अंदर. सो ईच ऑक्सीजन एटम इज़ बीन सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स. दिख ही रहा है कि हर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम से क्या है आपका टेट्राहीड्रली अटैच्ड है, एंड और डिस्टेंस जो है करीबन 100 पिकोमीटर्स हैं, while the remaining 2s are associated by the hydrogen bonds. ऑफ दैट दे हैव द डिस्टेंस ऑफ 175 pm. तो ये जो इनका जो लैटर स्ट्रक्चर आता है, जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जनरेट अप कर लेता है. और जब वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जनरेट कर लेता है तो बीच में है ना वेकेंट स्पेसेस आ जाते हैं आपके, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जो भी आइस जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम दैन द लिक्विड वाटर, और इसलिए उसकी डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है दैट इज़ लेस एंड इट कैन फ्लोट ओवर वाटर. दिस इज़ द केसेस, क्योंकि इट हैज़ द, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि आइस ऐसा क्यों है कि आइस फ्लोट करती है, तो यू हैव अ वेरी गुड आंसर दैट इट शोज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द सेकंड इन दैट देयर मॉलिक्यूल्स they basically molecules of water is being come close packly arranged, and they have vacant spaces in them, so that's why they floats on water. So these 3 points are more than enough to explain the answer. Some occurs with this thing. Ammonia also, just see they shows the hydrogen bondings in them, and this is electronegative atom nitrogen, and hydrogen has been there. This is this thing, hydrogen bonding has been there. Then hydrogen bonding also between alcohol and water. You know water alcohols are easily soluble in water. Why? Because they have intermolecular hydrogen bonding in them, so that's why they are soluble in water. So this is very important. Now we'll focus on the other part. Now we'll focus on the intramolecular hydrogen bondings, and intra means अभी आपने देखा था that टू एक कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल्स रहे होंगे और कंपाउंड रहा, उसके मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट हो रहा है. यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल जो भी आपका अपना मॉलिक्यूल है उसके विद इन द सेम मॉलिक्यूल द बॉन्डिंग इज बीन देयर. लेट्स सी, आई हैव गिवन 2 एग्जांपल्स, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक एसिड. एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज बीन रिटन इन दिस मैनर. ऑर्गेनिक अभी आपने पढ़ी नहीं है बट यू रिवाइज इट इन दिस वे. तो ये क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसका, उसी के अंदर आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहेगी, ठीक है. तो जैसे आप इंटर स्कूल्स कंपटीशन करते हैं ना डिफरेंट स्कूल्स के साथ, और अपने स्कूल में जब आपका होता है तो इंट्रा वो स्कूल कंपटीशन होता है, तो वही चीज़ है कि आपका ये जो है विद इन द मॉलिक्यूल इज़ बीन हैपनिंग. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी रिटन इन दिस मैनर. आपने बेंजीन की रिंग बनाई, अब देखिए कैसे हाइड्रोजन जनरेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये आपका, अब आपका जो OH है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर यू कैन राइट इट हियर, तो ये आपका OH. अब नाइट्रोजन इसके साथ है तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सा, ये नहीं है नाइट्रोजन लगा के बैठ गए, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो आपने यहाँ डॉटेड लाइन से इंडिकेट करा, ये ऑक्सीजन है आपका, सही से लगा दीजिएगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडिकेट कर रहा है. फिर यहाँ आपका N आया, फिर ये यहाँ अटैच्ड हुआ, ये आपका डबल बॉन्ड हुआ, ये आपका ऑक्सीजन हुआ. तो दिस वे यू कैन हैव, ये ऐसे बना लेना. और ये आपकी, ये बेसिकली क्या है आपका इंट्रा molecular hydrogen bonding. Are you getting my point? Now let's focus on the salicylic aldehyde. ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉल का केस है. ये बेसिकली फिनॉल में ही आपकी ये ऑर्थो पोजीशन है जिसमें CHO लगा हुआ है. Now let's see, I am showing you from the book. दिस इज़ द केस, ठीक है. तो हमने यहाँ ना लगा के इधर लगा दिया है. ये ऑक्सीजन है वो OH का जैसे पीछे लगाया था,
यहाँ से अब देखो ये कार्बन भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन को अटैच करो, ये डबल बॉन्ड से रिलेट करेगा, क्योंकि तो डबल बॉन्ड क्यों लगा है, कार्बन एस 4 वैलेंसी, तो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन भी अपनी डबल वैलेंसी शो करेगा, लेकिन यहाँ वो बॉन्डिंग शो करेगा जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन bonding in the examples, and definition also I am showing you. This is the definition which you can learn. So this way our hydrogen bonding is been completed. So children, make sure that these examples जो हमने पढ़ा था, आइस है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, वाटर है, या अमोनिया है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल एंड वाटर, इसमें से रीजनिंग्स आती हैं. सो प्लीज़ फोकस ऑन द रीजनिंग पार्ट, एंड definitions also come in hydrogen bonding. Then different types, what are the conditions required for the hydrogen bonding, it's been there. तो ये रीजनिंग वाला पोर्शन है, and don't ignore it. So after 1 year or 2 years it comes, so you have to make learn it, each and everything in it.